अच्छा पिलाମାନେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବା ଏନ୍ଥାଲପି ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯୋଉଠି ମୁଁ ତମକୁ ଟୁ ଟାଇପ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଏନ୍ଥାଲପି ଅଫ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁକି ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁକି ଯେତିକି ଏନ୍ଥାଲପି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଏନ୍ଥାଲପି ଅଫ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ଏନ୍ଥାଲପି ଅଫ୍ କମ୍ବସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଉଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଜଳିଲେ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବର୍ନ ହେଲେ ଯେତିକି ହିଟ୍ ଇଭଲ୍ଭ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଏନ୍ଥାଲପି ଅଫ୍ କମ୍ବସନ୍। ତ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି କାର୍ବନ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ କାର୍ବନ ଦେଖ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଜଳିଲା ତାହେଲେ ତମକୁ ଯାହା ମିଳିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏନ୍ଥାଲପି ଅଫ୍ କମ୍ବସନ୍। ଯେହେତୁ ଏଇ କମ୍ବସନ୍ କହିଲି ଜଳିବା ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ତମର ହିଟ୍ ଇଭଲ୍ଭ ହବ ବା ରିଲିଜ୍ ହବ ତ ଇଏ ସବୁ ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସୋଥର୍ମି ପାଇଁ ଡେଲ୍ଟା ଏଚ୍ ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 3 ହେଲା ହିଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍। କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ନା ଯଦି ତମର ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ବେସ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କଲା ତମକୁ ଦବ କ'ଣ ନା ସଲ୍ଟ ଆଉ ୱାଟର। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଯୋଉ ହିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ହିଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍। କ'ଣ ଧର ମୁଁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ HCl ନେଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କଲି ତ ମୋତେ ମିଳିବ ସଲ୍ଟ ଆଉ ୱାଟର। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଯୋଉ ହିଟ୍ ଇଭଲ୍ଭ ହେଲା ଆକୁ ଆମେ କହିବା ହିଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍। ମନେ ରଖିଲ ତ ଏଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନରେ ଯେହେତୁ ହିଟ୍ ଇଭଲ୍ଭ ହେଉଛି ଇଏ ହେଲା ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ତା ମାନେ ଡେଲ୍ଟା ଏଚ୍ ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ହିଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜିନେସନ୍। କ'ଣ ତମମାନେ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆର୍ ଦେୟାର। ଗୋଟେ ହେଲା ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଠିକି ପିଲାମାନେ ତମର ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଥାଏ ମନେ ପକାଅ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଭିତରେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନସାଚୁରେଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଠିକି ତମର କାର୍ବନ କାର୍ବନ ଭିତରେ ଆଇଦର ଡବଲ ବଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଥିବ। ଓକେ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ବା ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଥିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡସରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଡ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଡବଲ ବଣ୍ଡରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ H2 ଆଡ୍ କଲେ ଏଟା ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତିନିଟା ମାନେ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 2 ମୋଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡଟା ଡବଲ ବଣ୍ଡ ହବ ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ତମେମାନେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନଟା ଟିକେ ଦେଖ C2H4 ମୁଁ ଯଦି ତା ଦେହରେ H2 ଆଡ୍ କରିବି ମୋତେ ଦେବ C2H6। ତମେ ମନେ ପକାଅ ତମେ 10th ରେ ପଢ଼ିଥିବ CH4 ମାନେ ମିଥେନ୍ C2H6 ମାନେ ଇଥେନ୍। ଓକେ ତ ଏମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ହିଁ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଡ୍ କରୁଛେ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ଅନସାଚୁରେଟେଡ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ଅନସାଚୁରେଟେଡ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖ ଏ ସବୁ 1 ମୋଲ୍ ଅଛି। ଏ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ଅନସାଚୁରେଟେଡ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡକୁ ସାଚୁରେଟେଡ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ କଲେ ଆମର ଯୋଉ ହିଟ୍ ଇଭଲ୍ଭ ହୁଏ ଆକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜିନେସନ୍। ତାମାନେ ଯେହେତୁ ଏଠି ହିଟ୍ ଇଭଲ୍ଭ ହବ ତ ଇଏ ହେଲା ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଏଇ ଦିଟା ବୁଝିଲ ଗୋଟେ ହେଲା ହିଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜିନେସନ୍। ନେକ୍ସଟଟା ଦେଖ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଆଟୋମାଇଜେସନ୍। କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକି ୟାକୁ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଆଟମ୍ସରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଟୋମାଇଜେସନ୍। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଯୋଉ ହିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଆଟୋମାଇଜେସନ୍। ବୁଝିହେଲା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନ୍ 1 ଦେଖେଇବି 1H2 ଦେଲା ମୋତେ 1H। ଏଠି ଦେଖିଲ ଯୋଉ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟଟା ଅଛି ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖ H2 ଦେଲା ମୋତେ ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଆଟମ୍ସ। ତ ଏଠି ପ୍ରୋସେସରେ ଯୋଉ ହିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଆଟୋମାଇଜେସନ୍। ବୁଝିହେଲା ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଆଟମ୍ସରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ତ ଏଠି ଆମକୁ ହିଟ୍ ଦରକାର ଏ ବଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ହିଟ୍ ଦରକାର ମାନେ ଏ ରିଆକ୍ସନ୍ ହିଟ୍ ଆବଜର୍ବ କଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବା ଏନ୍ଥାଲପି ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ତମର ହିଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରେସନ୍। ହାଇଡ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ଦେଖ
तो मैंने देख ये मु लिखी कपर सल्फेट CuSO4 सॉलिड केते मोल अच्छी ना गोटे मोल एठी आ पाखे किसी पानी नहीं माने वाटर मॉलिक्यूल नहीं तो जेहेतु एठी किसी वाटर नहीं आपको ए टाइप रो सॉल्ट को आमे कहू अनहाइड्रस सॉल्ट ओके एमाने जदी ओके फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सहित स्टिक कर जिवे ओके ताले एमानक आमे कोन कहबा ना हाइड्रेटेड सॉल्ट ओके तो मन रख पिला माने एटा आगु भी पढ़िबो तमरो लैबोरेटरी रे भी अछि हमर लैबोरेटरी रे जो एक्सपेरिमेंट्स अछि हम ए सॉल्ट किछि प्रिपरेशन सिंगल सॉल्ट डबल सॉल्ट तो एठी ए लैब रे तुम माने एक्सपेरिमेंट सब करबो आगु को कोन ए जो जेतिकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होचंती आकु तुम माने कहबो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कौन कहबो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो किछि नहीं ए गोटे मोल अनहाइड्रस सॉल्ट रे ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मिस कंबाइन कले गोटे हाइड्रेटेड सॉल्ट देले तो ए प्रोसेस रे जो हीट इवॉल्व हैला आकु हमें कौन कहले ना हीट ऑफ हाइड्रेशन वाटर ऐड हैला वाटर स्टिक कला आकु कहले हीट ऑफ हाइड्रेशन जेहेतु हीट इवॉल्व हैला तो ये हे गेला मोर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बुझा पड़ला नेक्स्ट देख हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एटा तुम मैंने सब जानी हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कौन ना देख आमर कौन ना फास्ट कहूँ आम जो मैटर आम पढ़ीचे मैटर को आम ब्रॉडली थ्री टाइप्स रे कैटेगराइज करीचे कौन कौन गोटे सॉलिड लिक्विड और गैस तो मु कहूँ आमर जदि गोटे मोल सॉलिड लिक्विड रे कन्वर्ट हैला तो ये जो सॉलिड टा लिक्विड रे कन्वर्ट हवा ये प्रोसेस टा हमें कहूचे फ्यूजन जेमती कि तुम आइस टा मेल्ट है वाटर हो जाउछ ये प्रोसेस को हमें कहूचे फ्यूजन तो यही मु तुमको एग्जांपल देली धर मोर सॉलिड गोटे मोल आइस लिक्विड रे कन्वर्ट हैला केतबेले मेल्ट हुए मेल्टिंग पॉइंट रे से मेल्टिंग पॉइंट रे जतबेले मेल्ट करी गला ए गोटे मोल सॉलिड जतबेले लिक्विड रे कन्वर्ट हैला जेतिकी अमाउंट रो हीट ए रिक्वायर करे ए मेल्ट हवा पई आको हमें कहले हीट ऑफ फ्यूजन नाम एटी हीट दरकार कहना लिक्विड आइसटा लिक्विड हम हीट दरकार बाहर हीट अब्जॉर्ब कला तो एंडोथर्मिक रिएक्शन माने डेल्टा एच पॉजिटिव सेमती वेपोराइजेशन कौन ना लिक्विडा गैस हम बुझ पारला गोटे मोर वाटर लिक्विड रा गैस हैला जेतिकी हीट दरकार आकु कहले वेपोराइजेशन केतेबेले पानीटा वेपर होची 100 डिग्री सेल्सियस माने एटा तार बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट रे वेपर हैला सेमती आकु आमे कहले ए प्रोसेस रे जेतिकी हीट दरकार आकु कहले हीट ऑफ वेपोराइजेशन सेमती सब्लिमेशन कौन ना आमे जदि सॉलिड टा डायरेक्ट गैस हो जाउछ सॉलिड टा डायरेक्ट एठी फर्स्ट प्रोसेस रे फ्यूजन रे कौन होतला सॉलिड टा लिक्विड होतला वेपोराइजेशन रे लिक्विड टा गैस होतला मु जदि कभी सॉलिड टा डायरेक्टली गैस हो जिवो आले आमे आकु कहबा सब्लिमेशन प्रोसेस ए सब्लिमेशन रे कौन आमे जदि गोटे मोल सॉलिड टा गैस हो गला जेतिकी अमाउंट हीट दरकार ताको आमे कहले हीट ऑफ सब्लिमेशन ता माने तीनटा हीट ऑफ फ्यूजन सब्लिमेशन और वेपोराइजेशन आको आमे कहूचे हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन माने कौन गोटे फिजिकल स्टेट रु आ गोटे फिजिकल स्टेट को जाउछन तो ये तीनटा को प्रोसेस रे तमर हीट दरकार हीट अब्जॉर्ब कले जाइंकी तमर फिजिकल स्टेट चेंज हैला ते सब गोटे गोटे एंडोथर्मिक रिएक्शन आ हीट चेंज ए प्रोसेस पई हबो केते डेल्टा एच हो तुम पॉजिटिव बुझीगला नेक्स्ट देख हीट ऑफ सॉल्यूशन किछि नहीं मुझे कपर सल्फेट को एक्सेस पानी रे ऐड करी तो कपर सल्फेट डिजल्व हो जिवो जेमती तमे चीनी को पानी रे डिजल्व करूछ तमे चीनी को पानी रे जदी डिजल्व करो तले कोन चीनीटा पानी रे पूरा कंप्लीटली डिजल्व हो जाए हां ना नहीं तो से सेया कहला हम जदी गोटे मोल सब्सटेंस को एक्सेस पानी रे बा एक्सेस सॉल्वेंट रे डिजल्व करबा तले एठी जो हीट रिलीज हो बा हीट जो अब्जॉर्ब है के प्रोसेस हो एटा को हमें कहले हीट ऑफ सॉल्यूशन कौन ना द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग व्हाट प्रोसेस ड्यूरिंग during when one mole of solid, one mole of substance is completely dissolved in large excess of solvent. Okay, aqua में कहवा heat of solution बुझेला तो हीट ऑफ सॉल्यूशन ने कौन कहली हाइदर आ हीट दरकार डिजल्व हवा
या ये ऑटोमेटिक डिजॉल्व होइकी परे हीट इवॉल्व करती तामने ये एंडोथर्मिक हो पारे एक्सोथर्मिक हो पारे तामने डेल्टा एच पॉजिटिव हो पारे नेगेटिव हो पारे तमें मैंने भावुव हीट ऑफ सॉल्यूशन रे मन रख कहूँ सॉल्यूशन कौन आम जमी चीनी पानी ऐड कले ये चीनीटा को आम कहे सल्यूट चीनी की कहले कौन ना सल्यूट आ पानी की कौन कहले यहाँ सल्वेट ओके सल्यूट प्लस सल्वेट तुम दब सल्यूशन सल्यूट प्लस सल्वेट दब तुम सल्यूशन ओके तो ये बुझीपार तो तुम मैंने भावुव ये जो हाइड्रेशन पूर्व जो हाइड्रेशन पढ़ुले ये भी तो से पानी तुम कहूल तो मन रख ये कौन आम जब डिजल्व करवा गोटे सबस्टांस को आम एक्सेस पानी ना कि आम जो हाइड्रेशन पढ़ले से कौन ना गोटे पर्टिकुलर फिक्स नंबर ये जमी 5टा ये जमी 7टा ये जमी 7टा मलिक्यूल जाकि स्टिक है तो आम कौन ना गोटे फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कौन है ना ये सॉल्ट रे स्टिक हो गला ताको आम कहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो यहीटा को कहले हाइड्रेशन तो यही प्रोसेस रे जो हीट चेंज है आपको आम कौन कहूँ ना हीट ऑफ हाइड्रेशन मन रहा तो दीटा जिनस मन रखिला गोटे है हीट ऑफ सॉल्यूशन आ गोटे है हीट ऑफ हाइड्रेशन सॉल्यूशन कौन ना आम जब सल्टा एक्सेस सॉल्वेंट डिजॉल्व है सेटा आम कह सॉल्यूशन आ हाइड्रेशन कौन ना जब गोटे पर्टिकुलर फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल सल्ट रे स्टिक होगी रहीगला ताको आम कहवा हाइड्रेशन बुझिपार तो हीट ऑफ हाइड्रेशन हीट ऑफ सॉल्यूशन बुझिपार लास्ट गोटे नुआ कॉन्सेप्ट कहूँ कौन ना बॉन्ड एनर्जी पिला माने बॉन्ड एनर्जी बा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कौन देख केते अमाउंट हीट दरकार मु धर नेली हाइड्रोजन गैस रे हाइड्रोजन गैस माने कौन H2 गोटे मोल हाइड्रोजन गैस नेली ये हाइड्रोजन गैस को मु भांगी बॉन्ड भांगिया मत जी एनर्जी दरकार एनर्जी ताको आम कहूँ बॉन्ड एनर्जी देख मुझे बॉन्ड को भांगिली दीटा गैसियस एटम पाइली सेमती Cl2 क्लोरीन गैस को मुझे बॉन्ड भांगिली दीटा क्लोरीन एटम पाइली गैसियस एटम यहीटा को आम कौन कहूचे जी एनर्जी दरकार आपको कहले बॉन्ड एनर्जी बा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेमती HCl गैस देख मुझे बॉन्ड भांगिली H एटम पाइली Cl एटम पाइली गैसियस एटम मुझे तुमको कहि HCl को भांगी H प्लस Cl माइनस आयन पाइबी ताकू मु कहि परिबी कि एटा को बॉन्ड एनर्जी ना मु कहली बॉन्ड एनर्जी कौन ना बॉन्ड भांगिबो तुमको गैसियस एटम मिलिबो ताहले आमे आपको कहि परिबा बॉन्ड एनर्जी बुझी पारला समझते मु लास्ट गोटे देखो धर HCl मु HCl भांगिली मते मिलला हाफ मोल H2 हाफ मोल Cl2 एटा कोन बॉन्ड एनर्जी ना एठी देखुन मॉलिक्यूल मिललानी मु कहली मते बॉन्ड भांगिबो आ एटम्स मिलिबे यदि एटम्स मिलिबे गैसियस एटम्स मिलिबे ताले आपको आमे कहबा बॉन्ड एनर्जी बा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो आज क्लास रे हम कौन कौन डिस्कशन कले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन starting from heat of formation, heat of combustion, heat of neutralization, heat of hydrogenation, heat of atomization, heat of hydration, heat of solution, heat of transformation like heat of fusion, heat of vaporization, heat of sublimation and last time we पढ़िले heat of कौन पढ़ले ना सॉल्यूशन कहीदेली लास्ट टाइम पढ़ले कौन ना बॉन्ड एनर्जी कौन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कौन थैंक यू